नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री हनुमंतप्पा हलकोडी ने आग्रह किया कि जेडीएस उम्मीदवारों को जिताए। जिला स्वस्थ समिति के नोडल अधिकारी शिल्पा एम ने आग्रह किया कि युवा मतदाता मतदान जरूर करें। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा के नेता कर्नाटक में केवल चुनाव के लिए आते हैं, आपदा के लिए नहीं। चुनाव आयोग ने नालायक बेटा वाले बयान पर प्रियंका को जारी किया नोटिस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोईली का बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस के पास कोई प्रस्ताव नहीं। मणिपुर हिंसा पर बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा, मेरा राज्य जल रहा है, मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। कैमरे के सामने खूब रोई विनेश फोगाट, कहा क्या इसी दिन के लिए हमने जीते थे मेडल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जेडीएस कोई भेदभाव करे बिना राज्य के विकास के लिए काम करती आई है। पार्टी ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के लिए योजनाएं तैयार करने की बात पूर्व मंत्री हनुमंतप्पा हलकोडी ने कहा। वह आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने एचडी कुमारस्वामी के कार्यालय में किए गए किसानों के कर्ज माफी योजना का हवाला देते हुए जेडीएस की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए राज्य में जेडीएस को सत्ता में लाने के लिए उम्मीदवारों को जिताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीदर उत्तर से सूर्यकांत नागवारपल्ली सहित जिले के अन्य तालुकों में रहे जेडीएस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इस अवसर पर जेडीएस जिलाध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, रमेश कुमार पाटिल, राजू कड़ियाल सहित अन्य जेडीएस नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मुखंडರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಲಕೋಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಜು ಕಡ್ಯಾಳವರಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲ್ಪುರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗೆಳೆಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಈಗ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ। ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ। ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಜನತಾದಳ ಏತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜನತಾದಳನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ। ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಜನತಾದಳ ಬರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ। ಕಳೆದ ಸಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗನೂ ಕೂಡ ಜನ ಅವರಿಂದ ಏನೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೇನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮ, ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಗಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದೊಂದು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಜನೆ, ಕೊಳವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಳವೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ 3 ಕೊಳವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ 3 ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ 2-3 ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಜನಕ್ಕಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಜನ ಕೊಡ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಲಂದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. जिला सर्व समिति की नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि 10 मई को मतदान होना है, इस सभी को अनिवार्य रूप से मतदान करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन व जिला सर्व कमेटी बीदर की ओर से बीदर शहर में पापनाथ झील के पास आयोजित कैंडल मार्च कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आम चुनाव प्रणाली हमारे संविधान में शामिल है, इसने हमें मतदान का ये सब विशेषाधिकार दिया है, इसलिए सभी को मतदान से दूर न रहकर अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। बीदर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बीदर जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारी की है। उन्होंने कहा कि जनता को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला सर्व समिति द्वारा कई मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 मई को मतदान के दिन सभी लोग लोकतंत्र के पर्व में मतदान में हिस्सा लें और मतदान करना हमारा अधिकार है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय भाजपा नेताओं पर बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नहीं बल्कि चुनाव से पहले कर्नाटक आने को लेकर निशाना साधा। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए दिल्ली से भाजपा नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। उन्हें तब आना चाहिए था जब कर्नाटक संकट में था। उन्होंने पूछा, राज्य के लिए पीएम मोदी का क्या योगदान है। सिंचाई क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के योगदान पर सवाल उठाते हुए पूर्व सीएम ने कहा, कृष्णा ट्रिब्यूनल का फैसला आए 10 साल हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सिंचाई के लिए क्या किया है। पीएम मोदी का दावा है कि जेडीएस ने किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या उन्हें यह भी नहीं बताना चाहिए उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात पर विवाद पर जेडीएस नेता ने कहा कि क्या प्रतिबंध लगाने से समस्या हल हो जाएगी। दोनों पक्षों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बजरंग दल द्वारा मासूमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके दिमाग को भ्रष्ट और नष्ट किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों को पहले कुचला जाना चाहिए। उसने पूछा, जब वे 5 साल सत्ता में थे तो कांग्रेस ने उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। पीएम मोदी जी हमारी आलोचना कर रहे हैं कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन अगर हम बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो क्या हमारी विचारधारा को अचानक उनकी मंजूरी मिल जाएगी।
भारत के चुनाव आयोग सीईसी ने चितपुर के कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे को प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी कथित नालायक बेटा टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें प्रथम दृष्टया पर यह पाया गया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन किया। इसने उन्हें गुरुवार शाम 5 बजे तक कारण बताने का आह्वान किया है कि आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ उचित कार्यवाही क्यों न की जाए। यह मंगलवार को भाजपा नेताओं पीयूष गोयल, अनिल बलूनी और ओम पाठक द्वारा ईसीई के पास दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद है कि प्रियांक ने 30 अप्रैल को कलबुर्गी में एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। ऐसा निकम्मा बेटा बैठा होता तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा। प्रियांक का था बयान। आचार संहिता के प्रावधानों के आलोक में भाषण के वीडियो की जांच की गई और निम्नलिखित भाग को आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। निर्धारित समय के भीतर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और चुनाव आयोग उचित कार्यवाही या निर्णय लेगा। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी, पार्टियां और उम्मीदवार निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेंगे जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक प्रवचन के उत्तरोत्तर गिरते स्तर पर गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए राजनीतिक पार्टियों को इस नोटिस पर कि बार बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि कर्नाटका में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का पार्टी के पास कोई प्रस्ताव नहीं था। मोइली बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध का उल्लेख करने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ कई वर्गों के विरोध के बाद बुधवार को उडुपी में मीडिया कर्मियों के सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मोइली ने कहा कि कांग्रेस का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश की पृष्ठभूमि में दिया गया होता। एक राज्य सरकार किसी भी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार इसे स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा को जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूजा करती हैं, को याद करना चाहिए कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिबंध के आदेश को रद्द कर दिया था और कहा था कि किसी भी संगठन को इस तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने कहा, मंगलवार को जारी हमारे घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर कोई संगठन, चाहे वह पीएफआई हो या बजरंग दल, समाज में शांतिपूर्ण माहौल को नुकसान पहुंचाने में शामिल है तो उसे प्रतिबंधित करना पड़ सकता है। बीएमटीसी और केआरटीसी बसों पर विमल इलायची के विज्ञापन लगाने पर आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल संघों के गठबंधन कंसोर्टियम फॉर टोबैको फ्री कर्नाटका ने बस निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजे हैं, यह कहते हुए कि यह तंबाकू के लिए एक सरोगेट विज्ञापन है और इसे हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि भारत में तंबाकू और अल्कोहल उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। निर्माता सरोगेट उत्पादों जैसे विज्ञापन के रचनात्मक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कमला पसंद, विमल पान मसाला, रजनीगंधा जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने वाली कंपनियों और इंपीरियल ब्लू और स्टर्लिंग रिजर्व अल्कोहलिक बेवरेज बेचने वाली कंपनियों को सॉरोगेट विज्ञापन के लिए नोटिस जारी किया है। सीएफटीएफके के संयोजक एसजे चंदर ने कहा, बीएमटीसी और केएसआरटीसी बसों पर विज्ञापन उस श्रेणी में आते हैं। उन्होंने समझाया, इलायची बेचने की आड़ में विज्ञापनों का उद्देश्य विमल के चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का विपणन करना है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा की धारा 5 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मणिपुर में हालात बेहद नाजुक हैं। राज्य में जारी हिंसा पर अब बॉक्सर और पूर्व राज्यसभा सांसद एमसी मैरी कॉम का भी बयान सामने आया है। मैरी कॉम ने कहा, मुझे मणिपुर की स्थिति के बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। बीती रात से हालात खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि मणिपुर सरकार ने आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और अगले 5 दिनों के लिए पूरे पूर्वोत्तर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। वहीं इससे पहले मैरी कॉम ने एक ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर करके लिखा, मेरा राज्य जल रहा है, कृपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मदद करें। A9 न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मैरी कॉम ने कहा, मैं राज्य और केंद्र सरकार से स्थिति के लिए कदम उठाने और राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील करती हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हिंसा में कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। यह हालात जल्द से जल्द सामान्य होनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इस दौरान पुलिस के साथ हुए विवाद पर बोलते हुए विनेश फोगाट कैमरे के सामने रो पड़ी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे तब कभी नहीं सोचा था एक दिन हमें ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैं तो कहूंगी कि देश के किसी भी खिलाड़ी को देश के लिए मेडल नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने कैमरे के सामने रोते हुए कहा कि जहां हम जमीन पर सो रहे थे वहां पानी भर गया। इस कारण हमने सोने के लिए चारपाई मंगवाई, लेकिन पुलिस ने चारपाई नहीं आने दी। विनेश ने कहा कि जहां हम सो रहे थे वहां पानी भर गया। इस कारण सोने के लिए जब हमने लकड़ी के फट्टे वाली चारपाई मंगवाई तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि सो जाओ मर जाओ। वहीं इस मामले पर पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बिना किसी इजाजत के फोल्डिंग लेकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस बारे में जब पुलिस ने सवाल किया तो सोमनाथ भारती के समर्थक आक्रामक हो गए और ट्रक से चारपाई उतारने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस से हुए विवाद के बाद सोमनाथ भारती व अन्य 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस बेमौसम बर्फबारी से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। पहले मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण 5 मई तक के लिए रोक दिया गया था। वहीं केदारनाथ में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से बुधवार 3 मई को यात्रा स्थगित रही, जबकि धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं को ऋषिकेश, श्रीनगर, सोनप्रयाग सहित कई जगहों पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते तीर्थयात्रियों से फिलहाल यात्रा पड़ाव में ही ठहरने का अनुरोध किया है। अशोक कुमार ने एक ट्वीट में कहा, आज भी श्री केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी जारी है। श्री केदारनाथ यात्रा आज के लिए रोक दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित स्थानों पर व यात्रा पड़ाव में जहां हैं वहीं बने रहें और केदारनाथ धाम की ओर न आए। खराब मौसम के मद्देनजर यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक स्वयं मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी के कारण पुलिस तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश, श्रीनगर, गौरीकुंड, फाटा, सोनप्रयाग सहित कई स्थानों पर आगे बढ़ने से रोक रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता संजय रावत का नाम दिल्ली शराब घोटाले में 4 जगह मेंशन किया गया था। इनमें से एक जगह यहां दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिखा गया, जो कि टाइप करने में गलती के कारण हुआ है। अब इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि शराब का पूरा मामला फर्जी है, जो साबित हो गया क्योंकि चार्जशीट में आप सांसद संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। क्या गलती से चार्जशीट में किसी का नाम आ जाता है? इससे साफ है कि पूरा मामला फर्जी है। केजरीवाल ने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा सिर्फ देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और गंदी राजनीति के तहत सबसे तेजी से उभरती पार्टी को रोकने के लिए कर रहे हैं। उन्हें यह शोभा नहीं देता। केजरीवाल ने संजय सिंह के इस दावे के बाद ट्वीट किया कि ईडी ने उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनका नाम गलती से रखा गया था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चयन पर निर्णय के बिना बनाई गई समिति की बैठक शुक्रवार को होगी। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। एनसीपी नेता ने कहा कि बैठक दक्षिण मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी। समिति के सदस्यों में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले, उनके भतीजे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अन्य नेता शामिल हैं। बता दें कि शरद पवार ने मंगलवार को यह ऐलान करके सबको चौंका दिया था कि वह पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार पवार की घोषणा के बाद उनकी पार्टी के घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सूले से फोन पर बात की। राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष पवार परिवार से है। पवार परिवार से यानी सूले या अजित पवार में से कोई होगा या अन्य किसी पार्टी नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब देखते हैं समाचार विदेश के। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। बिलावल गोवा में होने वाली एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। पुंछ में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद बिलावल का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री किन गैंग, रूस के सर्गेई लावरोव भी शामिल होंगे। चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर बायलैटरल मीटिंग करेंगे, लेकिन बिलावल के साथ 1-to-1 मीटिंग का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है कि वह जब तक सरहद पार से दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा तब तक भारत के सामने उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे में बिलावल किस एजेंडे के साथ भारत आ रहे हैं, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कथित हत्या के प्रयास के मद्देनजर क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले ने यूक्रेन पर भीषण पलटवार की आशंका बढ़ा दी है। इससे सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही नहीं बल्कि पूरा यूरोपीय संघ घबरा गया है। अमेरिका भी रूस के पलटवार की आशंका को भांप चुका है, इसलिए वह रूस की पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह तय माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हमला सीधे पुतिन पर हमला है और रूस इसका खतरनाक बदला लेगा। पुतिन के बदले की आहट से यूक्रेन की गलियों में अनहोनी के बादल छाने लगे हैं। क्या अब जेलेंस्की का साम्राज्य वाकई खत्म हो जाएगा? क्या अब यूक्रेन को पुतिन इतिहास बना देंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन क्रेमलिन पर हमले ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सुपरस्टार विक्रम हुए फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार, टूटी पसलियां। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, टीम इंडिया की भी टेंशन बढ़ी। आखिर में समाचार बाजार के। सोना पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, अभी कीमत में इतने हजार बढ़ोतरी की उम्मीद। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री हनुमंतप्पा हलकोडी ने आग्रह किया कि जेडीएस उम्मीदवारों को जिताए। जिला स्वस्थ समिति के नोडल अधिकारी शिल्पा एम ने आग्रह किया कि युवा मतदाता मतदान जरूर करें। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा के नेता कर्नाटक में केवल चुनाव के लिए आते हैं, आपदा के लिए नहीं। चुनाव आयोग ने नालायक बेटा वाले बयान पर प्रियंका को जारी किया नोटिस। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोईली का बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस के पास कोई प्रस्ताव नहीं। मणिपुर हिंसा पर बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा, मेरा राज्य जल रहा है, मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। कैमरे के सामने खूब रोई विनेश फोगाट, कहा क्या इसी दिन के लिए हमने जीते थे मेडल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।